Hello, am I audible? Hello, sir. Yeah, earlier I was having issues with my microphone. Can you please share your doubt? Sure. Sir, last time you told me to make a table-like thing for student info card like that. So the thing was, I was able to print everything like Hmm. name, age, everything was there, and I already put, for example, student name is equal to Priya Sharma, and while Hmm. printing, I just wrote the name. Then on the next line, I wrote as so. This is in. Should I just share it once so that it Sure, sure, can be better? sure. So are you able to see it now? Yeah, yeah. Okay, so my main problem is that rather than it coming as name here and Priya Sharma coming here in front of it, I was not able to, and it's coming at name. In the next line, it is coming as Priya Sharma. Is it? I mean, I just wanted to know how can I print it so that name and in front of it Priya Sharma is there. Because, for example, in C we just use slash n, but here what should I use? In SE, I mean, we use slash n to go to the next line. So here, what should I do so that it comes in one line itself? That's my doubt. This print statement, by default, it has a line break character that you told like in C you are using slash n. So by default, print every time has a line break character. So every time you use a print, it will start from next statement. But you can use the same print function to store the value of variable and the string as well. After this name, colon, and double inverted commas and na, just put a comma and then put the student name variable. Try it. So You can try it now. just a second. So you are saying that I should put it like control C, comma student name like this. Ah, and then remove this next Okay, so 10 number line. yeah, understood that. Okay, so now it's fine. And in this way, you can store any number of variables just by putting commas. Eh? Okay, so understood. So, if you don't have any other doubts, can we begin our next slide for this session 3? Yes, sir. Yes, I'm just So, I'm just sharing my screen. Give me a few seconds. sure, sir. So today we are going to start with introduction to control flow. है ना? So control flow basically like we will be seeing how to control the flow of things in a program. Like how we want a program to behave. The behavior should be controlled by the programmer who is writing the program. So, we will discuss what this control flow is in today's lecture, and we'll see if else statements. So, these if else statements always comes under control flow. Since you are aware of C, so you have an idea how this if else works, but it is basically for the user to control the flow in which the program is going or behaving. It depends upon you whether you want a particular set of coding lines to be executed by the program or not, and that can be controlled by using if else statements. So you are writing a program of 100 lines, but what Python does or any other programming language does is that they will try to execute each and every line within that program. But what if certain conditions are not met? And in that scenario, you don't want your program to basically run those particular set of lines.
So there you need a control, like you can control the flow. Okay, Python or any programming language, you don't have to execute all these 100 lines. Only if a certain condition met, then execute these lines, otherwise skip those lines. So that control, we will be seeing that how this control flow works. So it is written here like if it rains, take an umbrella, otherwise don't. So it is a condition कि अगर बारिश होती है then only you need to take umbrella, otherwise you don't have to carry it with you. If so these conditions, where the conditions are put in front of a user or a program, is basically a control, that you are defining a certain type of authority or control over certain type of scenario. If that scenario is satisfied, then only you need to perform according to the instructions given by the user in the form of program that is being written. So that's exactly what control flow means. Like your program can make decisions based on the conditions that you are providing it. So in programming language, usually how do we establish this control flow is by conditional statements. Just give me a second. Sorry for the disturbance. So like what I was talking is like what are conditional statements, है ना? So in order to establish the control flow in a program, so you need certain type of basically like certain type of rules that are predefined by a programming language that will help you establish control over your program. So these things we call as conditional statements. So what is the objective of these conditional statement is like to understand how Python makes decision, like and this is a universal truth. It don't apply only to Python. To every programming language, conditional statement help us to understand how decisions are being made. It also helps us to learn how to use if, elif means else if. So in C or other programming languages, we usually write else then if. So they have combined and make it a very short abbreviation like elif, है ना? So we call it as else if only. So elif or else if is it's similar, and then else statement. So these are the three conditional statements that we will be seeing that will be helping us to understand how the things are behaving, how the control is flowing, and how these things work basically. So now comes the definition of these conditional statements. Conditional statements allow the program to execute certain blocks of code only if a specific condition is true. That is what I was saying earlier. Like if it rains, then only take umbrella. If it doesn't satisfy the condition, then you don't need to take umbrella outside. So this is what conditional statements do. So similar thing they do in the code also. Like you have written 100 lines of code, and there is a certain section of block of code. Block of code you can consider as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lines of code that you have written under the conditional statement, that we call it as a block of code. है ना? It means part of a code. So like if you want the program to execute certain block of code only if a condition is that you mentioned to that particular program satisfies. What satisfies means if it stands for true, then only execute these lines, otherwise skip these lines. So this is what if statement does. Yeah, so for example, like execute this block of code if it is true. We will be seeing it with example also. So like as we have seen that there are three statements, if, elif, and else. So we will be exploring those. So the if statement. So what this if statement does is it is used to execute a block of code only if a condition is true.
सिंटेक्स इसका क्या रहता है कि इफ देन condition, then these colon, and after that you have to write the condition that you oh sorry the statements that you want to execute, and then basically कि उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है. तो not much in theory, but let's see a practical. Suppose suppose we have marks that are total marks of a student has scored की 98 है ना. तो now if I want कि my marks are greater than 80, then print outstanding, right? तो कि अगर मेरे मार्क्स 80 से बड़े होंगे, if my marks are greater than 80, then print this outstanding वाला message to the user, right? So let's save it and run it. So now you are seeing that the result in the console is coming as outstanding. So how Python is behaving is like कि उसने पहले मार्क्स पढ़े कि ओके मार्क्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर 98 वैल्यू स्टोर्ड है. फिर वो सेकंड लाइन पे आया क्योंकि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो वो लाइन बाय लाइन इसको कंपाइल करता है. तो देन इट कम्स टू द सेकंड लाइन. इन द सेकंड लाइन इट सीज इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, ओनली प्रिंट दिस आउटस्टैंडिंग वाला मैसेज. अगर मार्क्स 80 से बड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना. तो अब खुद सोचो कि लाइक यू आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज. अभी आपने पाइथन को एल्स इफ एल इफ कुछ नहीं बताया है, तो यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग की इफ स्टेटमेंट, हाउ दिस इफ स्टेटमेंट परफॉर्म्स, है ना. तो अब मेरी कंडीशन क्या हो गई कि 98 है, पाइथन विल रिप्लेस दिस मार्क्स विद 98 इन द बैकग्राउंड, है ना. इट विल टेक द वेरिएबल वैल्यू. तो क्या मार्क्स मेरे लेस देन 80 हैं? अगर मेरे मार्क्स लेस देन 80 हैं देन प्रिंट द मैसेज. तो अब क्या होगा, 90 आया, देन 90 इज हियर. इज 90 लेस देन 80? नो, इट 90 इज नॉट लेस देन 80. वी ऑल नो कि 90 80 से बड़ा है. तो पाइथन क्या करेगा, सिंस यू हैवंट एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड पाइथन, तो पाइथन एक ट्रीटेड एज अ चाइल्ड कि उसको हर चीज बतानी पड़ेगी. whatever you told him he will only do only those things, है ना. you have to explain each and everything. तो अब तुमने क्या किया कि you have explained earlier कि 90 से बड़ा है, ओ सॉरी 80 से बड़ा है, तो then you have to print outstanding message. बट अगर वो 80 से बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब कि लाइक 98 जो है कि 80 से छोटा है कि नहीं, वो 98 तो बड़ा होता है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी. और फॉल्स कंडीशन के सिनेरियो में ये ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. क्यों? क्यों आपने कभी बताया ही नहीं. पाइथन क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर, इफ वाले ब्लॉक के अंदर इट विल एंटर ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ दिस कंडीशन इज ट्रू, बट द वैल्यू ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो वो इस ब्लॉक के अंदर कभी आएगा ही नहीं. तो ट्रीट इट एज लाइक देयर इज समवन, देयर इज अ योर फ्रेंड एंड ही इज विजिटिंग योर हाउस, है ना. तो आपने उसको अपना हाउस नंबर बता दिया, so then he's searching your basically the area, then or your society's flat, so he's going through each and every room and seeing the number outside the house कि क्या ये नंबर मैच कर रहा है जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को दिया. if that condition is being satisfied, only then he will ring the bell of your house कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये मेरे दोस्त का घर है, तो आई शुड कॉल हिम आउट, है ना. तो फिर वो उस घर में एंटर करेगा. सपोज वो नंबर, हाउस नंबर जो उसके पास नंबर है उससे मैच ही नहीं कर रहा, और आपने अपने फ्रेंड को नहीं बताया अल्टरनेट कि ओके इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस हाउस यू कैन गो टू अ गार्ड और अ सिक्योरिटी पर्सन एंड देन ही विल हेल्प यू फाइंड माय हाउस. तुमने ये उसको समझाया ही नहीं था एंड ही डजंट नो कि हाँ इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं. तो वो क्या करेगा, वो बस खड़ा रहेगा, उसको नहीं पता, मतलब वो एक वर्ड में चला गया, उसको नहीं पता कि अब मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज you have not explained the scenario in which if this condition is not satisfied what it has to do. तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. तो like he will run this again, then you can see nothing is getting printed here. And with same example, when we explore else, then you will understand it better why it is happening. Also, let me show you one thing कि अगर आप इस कंडीशन का रिजल्ट को प्रिंट करो ना, कि like marks
greater than 98 तो 80 तो वो जो मैं ट्रू वाली बता रहा हूँ कि ट्रू आएगा ये आएगा तो वो इधर से समझ में आएगा कि हाउ पाइथन इज interpreting this तो ये you can see this value python is printing as true पाइथन क्या कर रहा है इसके कंडीशन को चेक करके रिजल्ट क्या आया कि ट्रू 98 इज ग्रेटर देन 80 हाँ जी ट्रू है ना लेकिन अगर यही मैं उल्टा कर दूं जो अभी अपन कर रहे थे जिसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था तो ये इसको फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि पाइथन को पता है कि कंडीशन फॉल्स है 98 कभी भी 80 से छोटा नहीं हो सकता नाउ इट इज प्रिंटिंग फॉल्स तो वो सेम वैल्यू यहाँ पे आती है बैकग्राउंड में कैलकुलेट होके अगर वो वैल्यू ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर वो एंटर कर जाएगा इफ दिस वैल्यू इज फॉल देन it will skip all those lines no matter how many lines you have written under this like some more lines will be written under this if statement so it will skip all these lines come out of the if block and then will start executing the rest of the code how लाइक कि एक मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ कि उसके बाद आउटसाइड तो अब क्या हो रहा है कि वैल्यू इधर आया ये तो अपन प्रिंट कराए थे फॉल्स इसे हटा देता हूँ मैं तो इसलिए तुम्हें फॉल्स दिख रहा है वो है ना तो नहीं तो यहाँ पे क्या था कि यू आर आउटसाइड द इफ ब्लॉक जैसे ही आएगा क्यों अब क्या हो रहा है पहले कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था कंडीशन फॉल्स होने पे लेकिन अब पाइथन ने क्या करा पाइथन ने ये लाइन को बेसिकली ट्रांसलेटेड इट एंड देन इंटरप्रेटेड देन इट कम्स टू दिस लाइन इफ कंडीशन क्योंकि फॉल्स है देन इट विल स्किप दिस पर्टिकुलर लाइन एंड देन कम आउट ऑफ द इफ ब्लॉक है ना ये किस चीज से पता लगता है कि ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड वेयर इट इज एंडिंग वेयर फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग दिस स्पेस दैट आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी कॉल इट एज इंडेंटेशन है ना तो कि ये हो गया ये इंडेंटेशन हो गया और दिस स्पेस बेसिकली स्पेसिफाई योर स्कोप ऑफ द कोड दैट यू हैव सीन इन सी बाय दीस करली ब्रेसेस ये करली ब्रेसेस डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या करता है पाइथन में स्पेस डिफाइन करता है इस चीज को तो उसने देखा कि कंडीशन फॉल्स है देन इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर लाइन विल कम आउट ऑफ द इफ ब्लॉक एंड देन विल एग्जीक्यूट दिस व्हाट इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा इफ मार्क्स is greater than 80 तो नाउ इट इज प्रिंटिंग बोथ द लाइंस कि अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं तो देन इट विल फाइंड इट ओके कंडीशन इज ट्रू देन इट विल कम टू दिस लाइन प्रिंट दिस लाइन देन कम आउट ऑफ द ब्लॉक एंड देन प्रिंट इट विल प्रिंट दिस है ना तो कंट्रोल कहाँ पे है यहाँ वेयर यू आर एबल टू कंट्रोल थिंग्स दिस अंडर दिस इफ ब्लॉक this if block everything that will come under this if block you are able to control है ना through this particular condition now let's see other statements now if else statement अभी अपन ने क्या देखा कि like how if is working now I will show you कि अगर condition false हो जाए क्योंकि in the earlier example we have not considered a scenario where if a condition fails then what we have to do कि उस बंदे को आपका हाउस नंबर नहीं मिला तो what approach he has to take we haven't defined it earlier but now we will define it here so if else is used to execute an alternative block means you are giving it as a option B or a plan B है ना कि if this condition is not true you can follow the below instruction so like alternate block you will be defining when if condition is false तो सिंटेक्स क्या रहता है इसका like if then the condition then the statements that you want to execute or write then else then statements so the else block ensures your code always runs something even when the main condition isn't met in the earlier example what we were seeing is कि अगर if condition true नहीं होती है and then we are not writing this print वाला block that is outside of if तो nothing is getting printed है ना तो वहां पे क्या होता है कि if you are using else then it will print at least one value every time so how it is done I will show you here
अभी इसको कमेंट कर देते हैं। तो लाइक कि अब यहाँ पे अपने कंडीशन दिखाया था कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 देन यू हैव टू प्रिंट आउटस्टैंडिंग। इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू then you have to write the else block, enter, and you can write any message in the else block. So like we are writing the message to please write, ये लिख सकते हैं लाइक एवरेज लिख देते हैं ना, या फिर की कंडीशन डजंट सेटिस्फाइड। अब इसको रन करते हैं। तो अब आउटस्टैंडिंग मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, है ना। तो ये आउटस्टैंडिंग मैसेज आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी अपने मार्क्स 98 है, 98 इज ग्रेटर देन 80, यस, देन इट विल प्रिंट आउटस्टैंडिंग एंड विल स्किप दिस एल्स ब्लॉक। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको एल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मींस अगर उसको आपका घर मिल गया है ऑलरेडी, तो देन ही विल नॉट एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ना, कि आई हैव टू गो टू अ सिक्योरिटी पर्सन, आस्क हिम फॉर हेल्प टू फाइंड, बेसिकली हेल्प हेल्प मी टू फाइंड द पर्टिकुलर हाउस नंबर। तो उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं होती है। Suppose if the condition is not true, like your friend is not able to find your house, तो what it will happen कि पहले वो इसको कंडीशन को चेक करेगा, पहले खुद ढूंढने की कोशिश करेगा हाउस नंबर। इफ अगर वो नहीं मिलता, then it will go to the alternate option that you are providing under else block. तो else block में he will go and then he will do whatever things that you have written. Suppose we have written here condition not satisfied, condition not satisfied का मैसेज प्रिंट होगा कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स थी, दैट्स व्हाई इट ही कुडंट एंटर दिस ब्लॉक, he has to explore the alternative option, and then since alternative option doesn't contain any condition, तो ये सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है कि लाइक इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन एग्जीक्यूट दिस। तो एल्स ब्लॉक क्या करता है कि समथिंग इज गेटिंग प्रिंटेड एट लीस्ट इवन इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। ओके, if you are not able to understand, you can please ask the questions, otherwise we are good to go to else statement। अब ये मैंने इसका क्या करा था, ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, प्रिंट यू आर आउटसाइड ऑफ ए ब्लॉक, बिकॉज वी हैव कमेंटेड इट। तो कमेंट्स आर नथिंग, python or any coding language ignore the comments what we have written। it is basically used for user who is writing the program to understand what he is trying to do। कि आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, बट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कोड, है ना, इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अगर मैं ये हैश रिमूव कर देता हूँ तो इट विल नो लॉन्गर बी अ कमेंट एंड देन दिस मैसेज विल प्रिंट एवरी टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। लाइक अगर इसको फिर से रन करते हैं तो नाउ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यू आर आउटसाइड ऑफ द, ठीक है। तो वी हैव गॉन थ्रू दिस इफ एल्स स्टेटमेंट। Now comes the elif statement that we call it as else if। So elif is a short abbreviation of this else if। So short for elif, so it is used when you have multiple conditions to check कि ठीक है अगर ये नहीं तो ये, if it is not there then please check this, if it is also not there please check this, है ना। तो कि लाइक तुमने अपने फ्रेंड को पहले इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि भाई एक काम करना, if you are not able to find my room number then check the building block first कि whether you are in the correct building or not, है ना, or whether you are in the at the correct address or not। if you are in the not in if the building is also correct, then you can check this for a particular person or contact this particular number। if he is also not picking up your phones, then go to the security person by default and then he will guide you to the right place। तो else क्या रहेगा, वो डिफॉल्ट ब्लॉक रहेगा। as you can see it in the example कि else ब्लॉक जो है ना, it will always be a default, कि मतलब अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है then this block will run by default।
अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन इट विल नॉट कम टू दिस। तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है कि इफ योर कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, देन एल्स इफ, कि ऑल्टरनेट के साथ इफ लगा दिया मींस कंडीशन, कि ऑल्टरनेट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसको चेक कर लो, ये नहीं हो रही तो उसको चेक कर लो, जितनी भी कंडीशंस लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, यू आर फ्री टू राइट एनी नंबर ऑफ कंडीशंस। देन दिस एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओनली इन दैट सिनेरियो वेयर एवरी कंडीशन फॉल्स, है ना, जहां हर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब जाके एल्स ब्लॉक रन होगा। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, दिस एल्स ब्लॉक विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। तो जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे लिखा था, नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एल्स एलिफ, और कंडीशन लिखते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं देन आउटस्टैंडिंग, इफ मार्क्स आर लेस ग्रेटर देन 70, and I will explain what this and does basically, है ना, and marks are less than or equal to, याद आया ये ऑपरेटर भी है, यूज्ड इट इन लॉजिकल ऑपरेटर्स सेक्शन, की कंपैरिजन के काम आता है, कि लेस देन इक्वल टू 80। इसको देखो कर देखते हैं। अब उसके बाद कॉलम, और यहाँ पे अपन को लिखना है एक मैसेज एवरेज। और मान लो कि अगर ये कंडीशन भी नहीं होती है, मतलब तुम्हें एक और कंडीशन डिफाइन करनी है, देन एलिफ इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन what we call 33 and marks less than or equal to 70, तो print normal। और अगर अब 33 से नीचे मार्क्स आते हैं या 33 आते हैं तो लिख दो great। ठीक है, तो अब देखो एक नॉर्मल यूजर की तरह, लाइक वी विल इंटरप्रेट इट लाइक अ पेन पेपर मेथड, की पेन पेपर पे कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोग्राम, अभी देखेंगे। मेरा मार्क्स का वैल्यू क्या है, 98। तो if it statement will come once python program is getting executed, it will check कि marks क्या 80 से बड़े हैं, yes marks are greater than 80, so what it will print, it will print the outstanding। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला ब्लॉक else if वाला दोनों and then this else, they will not get executed। Why? क्योंकि कंडीशन यहीं पे ट्रू होगी, जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी दिस इफ ब्लॉक विल ब्रेक देयर बाय डिफॉल्ट, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इट विल नॉट, द प्रोग्राम विल नॉट प्रोसेस ऑल द बिलो लाइंस इन द इफ ब्लॉक। अब ये जो लास्ट 10 नंबर लाइन है, इट इज आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक, तो इट विल गेट प्रिंटेड। ओके, लेट्स सी हाउ इट इज वर्किंग। ये देखो, आउटस्टैंडिंग एंड यू आर आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर गेटिंग। तो इफ ब्लॉक के अंदर से वही स्टेटमेंट प्रिंट होगी जिसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और जहां पे वैल्यू ट्रू हो गई द ब्लॉक विल ब्रेक देयर। अब एक चीज और देखो, अभी ना एरर नहीं आया, ये मार्क्स की मैंने यहाँ स्पेलिंग एक गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पे एरर आ जाता। एरर कब आता, एरर विल ओनली कब व्हेन पाइथन विल रीड दिस लाइन। पाइथन ने ये लाइन कभी रीड ही नहीं करी, रीड ही नहीं करी, क्यों, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, the second condition, as soon as python finds कि इसकी वैल्यू ट्रू है, it will print this statement and it will not even read these statements from 4 to 9। क्यों, पाइथन का कंट्रोल फ्लो इफ ब्लॉक यही कहता है कि as soon as your conditions is satisfied, print the logic under those under that block and skip all rest of the lines under that if block and then come to the other lines of the program। अब मैं इसको मार्क्स को अगर ठीक ना करूं और वैल्यू 33 और 70 के बीच में दूं तो एक एरर आना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स की वैल्यू चेंज करते हैं और मार्क्स की वैल्यू 60 कर देते हैं।
अब देखते हैं इसको, एरर आ रहा, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर, कि मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, ये आ रहा है। तो अब वो एरर दे रहा है, क्यों? पाइथन ने पहले ये लाइन पढ़ी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करी सेकंड वाली, सेकंड लाइन की, कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, जी नहीं, 60 इज लेस देन 80, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इट विल नेवर गेट इनसाइड दिस ब्लॉक। देन इट विल कम टू द फोर्थ line directly, it will check marks are greater than 70, no, 60 is not greater than 70, तो वो इस ब्लॉक को भी स्किप कर देगा। देन इट विल कम टू द सिक्स्थ लाइन आफ्टर फोर्थ, ठीक है, मार्क्स आर ग्रेटर देन 30, उसने देखा कि हाँ मार्क्स आर ग्रेटर देन 30, तो टिल दिस पॉइंट Python is able to interpret everything. As soon as Python encounters this variable, Python को पता लगता है कि ये तो कहीं डिफाइन ही नहीं करा, क्योंकि मार्क्स लिखा था, मार्क्स की स्पेलिंग गलत है। पाइथन और एनी कोडिंग लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग नेम कन्वेंशन, एज इट इज यूज करना पड़ेगा, केस इंसेंसिटिव होते हैं। तो कंडीशन ऑल द ट्रू थी कि 60 लेस देन 70 है, बट ये कभी प्रिंट क्यों नहीं है, एरर क्यों? क्योंकि स्पेलिंग गलत थी। अब अगर स्पेलिंग सही कर देते हैं, and now we will run it again, तो देखो अब मैसेज आ रहा है नॉर्मल, है ना, एंड यू आर आउटसाइड ऑफ द इक्वल। तो जैसे उसने देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है, द मार्क्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70, तो उसको क्या करना है, ये मैसेज प्रिंट करना, और उस कंडीशन में क्या करेगा वो, फिर आउटसाइड आ जाएगा इफ ब्लॉक के, और देन इट विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर। अब एक सिनेरियो ले लो जहाँ पे सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज मार्क्स आर 23, अब इसको रन करते हैं, अब क्या हुआ, फेल्ड प्रिंट, है ना। वाई फेल्ड इज गेटिंग प्रिंटेड, क्योंकि दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो अगर कहीं भी कोई भी, if any of the condition is not returning true or means every condition is false, है ना, तो by default else block execute होगा, ठीक है। तो this is how if else or elif block basically works when we want to establish control। नाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि वन इनसाइड अनदर, मतलब कि एक के अंदर एक वाली जो सिचुएशन आ जाती है, कि मतलब एक पेरेंट इफ हो गया और एक चाइल्ड इफ हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाइक एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ यूज्ड व्हेन अ डिसीजन डिपेंड्स ऑन अनदर डिसीजन। सपोज कि तुम्हें जाना है घूमने के लिए, यू वांट टू गो, सपोज यू वांट टू गो गोवा, है ना, विद योर फ्रेंड्स। तो वो तुम्हारा डिसीजन हो गया कि हाँ मेरे फ्रेंड्स जाएंगे तो मैं जाऊंगा, बट वो तुम्हारा डिसीजन किसके डिसीजन पर डिपेंड करता है, तुम्हारे पेरेंट्स के डिसीजन पर, है ना। कि अगर पेरेंट्स का डिसीजन होगा तभी तुम गोवा जा पाओगे। इफ पेरेंट्स आर नॉट गिविंग देयर कंसेंट, देन यू आर नॉट एबल टू गो ऑन अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स, है ना। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन आ गई कि ठीक है, ये तो कंडीशन है कि अगर मेरा ये दोस्त जाएगा तो मैं ट्रिप पे जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। इफ योर फ्रेंड इज गोइंग देन देयर इज अ सुपर कंडीशन, मतलब कि एक कंडीशन और है कि पेरेंट्स का भी कंसेंट होना चाहिए। अभी क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो सारे ब्लॉक को स्किप कर देता है, बट सपोज कि तुम्हें परमिशन चाहिए 2-3 लेवल पे, है ना, यू वांट परमिशन एट 2-3 लेवल्स, कि मुझे मेरा कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए, मेरे फ्रेंड का भी कंसेंट चाहिए और मेरे पेरेंट्स का भी कंसेंट चाहिए। तो वहां पे तुम्हें क्या होगा कि यू हैव टू, कि बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस की वैल्यू ट्रू होगी तभी तुम्हारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट विल फेल। अगर सारे लेवल से तुम्हें परमिशन मिल जाएगी, ठीक है बेटा यू कैन गो ऑन अ ट्रिप टू गोवा, देन यू आर एबल टू गो। सपोज कि 2 लेवल से तो कंडीशन परमिशन मिल गई, तीसरे लेवल ने मना कर दिया, तो यू विल नॉट बी एबल टू, है ना। तो if statement inside another if statement is called a nested if statement, and it is used when you need to satisfy multiple decisions, multiple conditions आपको satisfy करना। The code to execute if both condition 1 and condition 2 are true, only then the code will get executed। Let's see how it works।
अब मान लो एक वेरिएबल और ले लेते हैं अटेंडेंस, ये डबल टी रखी और अटेंडेंस होनी चाहिए 70 से ऊपर। ठीक है, तो अब इसको सबको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि लाइक इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और लिख देते हैं, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 70, देन ऑल राउंडर है ना, ऑल राउंडर। और क्या कहते हैं, इसके बाद भी एक मैसेज लिख देते हैं ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द कंट्रोल इज गेटिंग मार्क्स। ठीक है, अब देखो होगा क्या। पहले मार्क्स की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, 90, जो भी तुम करना है। तो अब क्या होगा, मार्क्स मेरे 90 हैं, अटेंडेंस की वैल्यू मेरी 70 है। एक कंडीशन चेक हुई, क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 है? यस, द मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जितनी इस वाले स्पेस के अंदर वैल्यू होंगी ना, प्रिंट के नीचे लाइन से जितनी वैल्यू, वो सब इफ इसका इफ का कंट्रोल रहेगा। और इस इफ का कंट्रोल किन पर रहेगा, जो दो स्पेस के बाद वैल्यू। ठीक है, तो इसके नीचे जितनी लाइन आएंगी उस पर इस वाले इफ का कंट्रोल रहेगा। तो अब क्या होगा कि ये इफ चेक करेगा मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, हाँ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, तो ये इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। मींस ये कंडीशन भी ट्रू रहेगी, उस ट्रू के बाद ये इस इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, घर के अंदर आ जाएगा। अब घर के अंदर जब वो बंदा आ गया, ठीक है, तुम्हारा दोस्त घर के अंदर आ गया, एंड देन ही विल स्टे इन योर हाउस ओनली अगर आपके घर में PS5 है, कि भाई मैं तो गेम खेलने के लिए आया था। ठीक है, अगर PS5 मान लो खराब हुआ पड़ा है, तो वो चला जाएगा घर से, वो कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तो गेम खेलने के लिए आया था, फॉर एग्जाम्पल इन दैट सिनेरियो। तो ये क्या हुआ, दो कंडीशन उसने चेक करी, पहले तो हाउस नंबर मैच कर गया, ठीक है, मैं घर के अंदर चला जाता हूँ, घर के अंदर जो भी खाना पीना नाश्ता पानी हुआ वो उसने किया। फिर ही टोल्ड यू अ कंडीशन, भाई मैं तभी रुकूंगा अगर तू PS5 मेरे को खेलने देगा, और अगर नहीं खेलने दे रहा तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि उसने घर के अंदर आके एक और कंडीशन दे, कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब मार्क्स ग्रेटर देन 90 80 होंगे तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अटेंडेंस को चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 70 होगी तो ऑलराउंडर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अपनी अटेंडेंस तो 70 है, यानी 70 इज नॉट ग्रेटर देन 70, रिमेंबर। अगर यहाँ पे अपन लिखते हैं ना इक्वल टू 70, या तो 70 हो या 70 के ऊपर हो, मीन्स आइदर इट इज इक्वल टू 70 और 70 के बड़ा। लेकिन हमने लिखा है कि 70 से बड़ा। ठीक है, तो खाली यही स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी 9 नंबर पे। रन करके देखते हैं। बेस्ड ऑन मार्क्स स्टूडेंट इज जीनियस, यू आर आउटसाइड ऑफ द। अब कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, वैल्यू को लिख लो 71। ठीक है, 70 से बड़ी है। अब इसको रन करेंगे। अब देखो अब क्या प्रिंट हुआ, बेस्ड ऑन मार्क्स स्टूडेंट इज जीनियस, ऑल राउंडर, एंड देन यू आर आउटसाइड ऑफ द। तो ये नेस्टेड इफ जो होता है इस तरीके से काम करता है। ठीक ठीक है, पहले ये कंडीशन चेक करी, इस कंडीशन के ट्रू होने से ये सब तो प्रिंट हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर की लाइन तब प्रिंट होंगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। है ना, तो मतलब वेरियस लेवल पे आपको वो लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, जब ये सारी वाली ट्रू होंगी हो जाएगा। अब सपोज करो कि दोनों ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है 80 वाली, इसमें क्या है मार्क्स जो है वो 60 है।
ठीक है। अब प्रिंट क्या होना चाहिए, अगर कंडीशन कोई भी ट्रू ना हो तो उस केस सिनेरियो में हमेशा जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी डिफॉल्ट एल्स वाली। ठीक है। तो जब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी तो इसके अंदर ही नहीं जाएगा। जब इसके अंदर ही नहीं जाएगा तो इस वाली कंडीशन को वो कभी चेक ही नहीं करेगा। मान लो घर के अंदर तुम्हारा दोस्त आया ही नहीं तो वो PS5 खेलने की डिमांड कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो घर के बाहर से चला जाएगा और जो ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि यहाँ पे होगा फेल्ड यू आर आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक। तो इस तरीके से ये कंट्रोल फ्लो जो है ये काम करता है। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब मैंने बोला था ना कि एंड का यूज मैं बाद में बताऊंगा। एंड का क्या मतलब हो जाता है कि दोनों जो सिनेरियो तुम डिफाइन कर रहे हो वो ट्रू होने चाहिए। जैसे कि मैंने इस एक केस में लिखा था कि मार्क्स ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन इक्वल टू 70, एंड लेस देन इक्वल टू 70। मतलब एंड का मतलब क्या हो गया, मैंने कल भी बताया था, और मतलब जो पिछला सेशन था उसमें भी बताया था कि एंड क्या करता है, पहली चीज को भी देखेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, एज इज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी इक्वल टू दैट। तो एंड क्या वैल्यू रिटर्न करता है, एंड करता है मल्टीप्लीकेशन। मान लो एज इज ग्रेटर देन 18 तो इसकी वैल्यू ट्रू, ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी वैल्यू 1 से। सिटी वैल्यू टैली, अब मान लो कि तुमने सिटी की वैल्यू भी टैली रखी थी, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। तो वन 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 इंटू वन इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो हमेशा जो कंबाइंड यानी जो एवरेज रिजल्ट आएगा इसका वो ट्रू आएगा। ट्रू इज बोथ आर ट्रू। ठीक है। और अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाती, मान लो कि सिटी दिल्ली ना होती, सिटी मुंबई हो जाती, तो वो क्या करता वन, क्योंकि सिटी इक्वल टू मुंबई आ रहा था तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। फॉल्स स्टैंड फॉर जीरो, वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। यानी कि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती इधर तो वो उसकी जो एवरेज वैल्यू निकालता वो आती टोटल वैल्यू उसकी फॉल्स। तो उस केस सिनेरियो में जहाँ पे अपना ग्रेटर देन 30 था, लेस देन इक्वल टू 70 था, अगर वो दोनों ट्रू ट्रू रिटर्न करते तभी उसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। अगर उनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती तो वो वैल्यू कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होती। ठीक है। और में क्या करते हैं, और में करते हैं एडिशन। तो इसमें अगर एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू रहनी चाहिए, इफ एज इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 18 और हैज परमिशन। ठीक है। मतलब दोनों में अगर एक भी वैल्यू ट्रू है ना, तो मान लो एक ट्रू एक फॉल्स है तो एक की वैल्यू भी वन, दूसरे की वैल्यू भी जीरो। वन प्लस जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से याद करना होता है कि ट्रू इफ एटलीस्ट वन वैल्यू इज ट्रू। ठीक है। ये और ऑपरेटर करता है। नोट क्या करता है, नोट का रिवर्स। अब मतलब जो मैंने बोला उसका उल्टा हो गया है ना, कि मैंने बोला नॉर्थ तो वो क्या कर देगा साउथ, मैंने बोला स्ट्रेट तो वो क्या कर देगा बैकवर्ड। मतलब जो भी रिजल्ट है उसका उल्टा। ठीक है। तो रिवर्स द रिजल्ट, जैसे कि वैक्सीनेटेड उसको कर देगा नॉट वैक्सीनेटेड। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंबाइन करने में काम आते हैं कुछ कंडीशंस। अब कॉमन एरर, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं व्हाइल डूइंग दिस कंट्रोल फ्लो राइटिंग प्रोग्राम्स इन पाइथन। एक तो इंडेंटेशन का जो होता है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन का एरर जो होता है वो स्पेस वाला जो मैं तुम्हें बता रहा था, उसमें दिक्कत हो जाती है बहुत बार। तो वो कि मतलब यू कैन सी योर सेल्फ की उधर देखो कि लाइक यहाँ एक स्पेस डिफाइन करता है इस वाले इफ का ब्लॉक है ना, एंड दिस डबल स्पेस बेसिकली ये एंड ये डिफाइंस दिस ब्लॉक। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा भी इसको इधर कर देता हूँ तो अब ये इस वाले इफ का पार्ट नहीं रहा। ठीक है। ये इस इफ का पार्ट हो गया और एरर आ जाएगा क्योंकि इसके बाद कुछ तुमने लिखा नहीं है, तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो ये स्पेस एरर बहुत आता है, कई बार आएगा। इसमें क्या होगा, पहचान क्या होगी, व्हेन यू विल रन द प्रोग्राम ना इन द कंसोल यू विल गेट की इंडेंटेशन है। तो उसको फिर समझ लो कि कहीं ना कहीं तुमने स्पेस की गड़बड़ की है। यूजिंग इक्वल टू इंस्टेड ऑफ ये, इन दोनों में अंतर होता है कि सिंगल इक्वल टू इज यूज टू असाइन द वैल्यू एंड डबल इक्वल टू इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू। ठीक है। सपोज कि यहाँ पर जो अपन कर रहे थे प्रोग्राम में कि मार्क्स इक्वल टू 60, तो 60 वैल्यू इज गेटिंग असाइन टू दिस वेरिएबल। ठीक है। लेकिन अगर मैं करता हूँ कि मार्क्स डबल इक्वल टू 80, तो ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी जब मार्क्स जो है 80 के बराबर होंगे, ना बड़े ना छोटे। इट इज कंपेयरिंग।
वैसे मैं एंट्री लिखूँ ना तो आंसर होगा, है ना। लेकिन अगर मैं 80 से वैल्यू एक भी बड़ी कर देता हूँ तो आंसर नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये कंपेयर करने का काम आता है कि क्या दोनों बिल्कुल सेम है, सेम मतलब दोनों बराबर है, आर तो इक्वल है ना। और जो सिंगल इक्वलिटी होता है ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। ओवरलैपिंग और कंफ्यूजिंग कंडीशंस तो ये तब आता है जब नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो तो वहां पे कंफ्यूज होने लगते हो कभी कभार। लेकिन वो सबके साथ होता है, बिगिनर्स के साथ होता है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे हाँ उतना तुम्हारे लिए वो क्लियर होता चला जाएगा। तो लाइक basically try to write as much as nested conditions, so you will be able to frame the logics, and then once you are able to frame the logics na, those things will become very easy. And even if an error comes, it will be very easy to spot that a particular error in your program. You will instantly get to know, okay, from these conditions this error is getting arise, you know? So you will resolve it, debug the code, and start doing your next work. तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो गई कि कीप योर लॉजिक सिंपल एंड रीडेबल, comment your conditions clearly by using hash, then after this hash you can write whatever messages you like. So like this command is used to compare the marks, or this command is used to compare the attendance, तो ऐसे लिखोगे तो it will become easier. But these commands are very helpful when you write very long programs in production or any other thing. Writing simple programs, these commands are not necessary. तो टेस्ट फॉर ऑल एज केसेस, जीरो नेगेटिव नंबर्स एंड बाउंड्रीज। तो एज केसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था इस वाले केस में, इस अटेंडेंस की वैल्यू 70 से बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी कंडीशन थी कि 70 या 70 के बड़ी हो। तो एक एज केस बन गया कि तुमने कभी 70 को टैकल ही नहीं किया, समझ रहे हो। तो उस कंडीशन को कहते हैं एज केस, वो सिनेरियो जो तुमने अज्यूम नहीं किया। तो वहां पे प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करेगा और तुम्हारा आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। बट इन सम ऑफ द सिनेरियोस आंसर नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एज केसेस। एज केसेस यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर मोर while doing coding on platforms, on coding platforms when you will try to do कॉम्प्लेक्स कोडिंग। तो वहां पे दे स्पेसिफाई कि ये एज कंडीशन है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कंडीशन। तो देन दोज आर कॉल्ड एज केसेस। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक ये अपन लाइक कि ये इस तरीके से ले सकते हो। हाँ, एक और चीज कि मार्क्स इंट इनपुट एंटर मार्क्स, ये चीज मैं अभी सिखा देता हूँ, बट शुड आई सर नहीं, अभी इसको बाद में करते हैं, ठीक है। मार्क्स इंट इनपुट, क्योंकि इनपुट ऑपरेटर वो तुम्हें पूरा समझाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि अभी क्या कर रहे हैं अपन, वी आर गिविंग आर इनपुट टू द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम में मार्क्स लिखते रहते हैं। सपोज यूजर से इनपुट लेना हो तो उसके लिए इनपुट ऑपरेटर यूज करते हैं, लेकिन ये तुम्हें जब समझ आएगा जब अपन स्ट्रिंग में काम करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें पहले स्ट्रिंग समझानी पड़ेगी। तो वी विल सी इट इन टुमारोज लेक्चर कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। तो देन दिस इंट इज यूज फॉर टाइप कास्टिंग, मैंने टाइप कास्टिंग तुम्हें बताया था पिछले सेशन। तो वो पूरा लॉजिक उधर आने वाला है। अभी के लिए बस मार्क्स इक्वल टू जो भी तुम्हें लेने हो वो लेना, एंड देन स्पेसिफाई दिस कंडीशन एंड देन प्रिंट योर मैसेज। तो summary for today's lecture is basically control flow lets the program to make decisions. We have seen it. If else are key decision making tools in Python. In every programming language, these conditions are used for making decisions, right? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि एंड और नॉट ऑपरेटर्स हो गए। आइडेंटिफिकेशन इज एसेंशियल, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, स्कोप ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली। कंट्रोल फ्लो लेट्स योर कोड थिंक, मास्टरिंग इट मेक्स योर प्रोग्राम इंटेलिजेंट। यहाँ पे तुम्हें देखोगे कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ सिर्फ वही प्रिंट नहीं हो रहा, पाइथन बैकग्राउंड में लॉजिक लगा रहा है, सोच रहा है कि हाउ टू कंपेयर दिस कंडीशन। ह्यूमन ब्रेन को तो सिखाया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी उसी तरीके से कंपाइलर के थ्रू ट्रेन किया गया। मतलब यू विल बी एबल टू सी कि हाँ कुछ इंटेलिजेंट डिसीजंस मेड हो रहे हैं एट द बैकग्राउंड, कंपैरिजन हो रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही है, एंड देन यू आर गेटिंग द आउटपुट। Assignment for today's session is to write a Python program that checks if a student is eligible for a scholarship based on the marks greater than equal to 85, and attendance must be
greater than or equal to 90%. 90% के लिए 90% नहीं लिखना, आप 90 लिख सकते हो, बट इट इज सिंस क्वेश्चन है तो इसलिए 90% यहाँ पे, ठीक है। तो इफ एल्स का प्रोग्राम होगा, प्रिंट में मैसेज कराना होगा कि यू आर एलिजिबल एंड यू आर नॉट एलिजिबल, ये दो मैसेज प्रिंट कराना बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन, ठीक है। फोर एल्स का यूज होगा यहाँ पे। तो आइदर यू कैन कंबाइन दीज टू कंडीशन, दो तरीके हैं, या तो नेस्टेड से कर सकते हो या एंड ऑपरेटर का यूज करके एक ही में कर सकते हो। एक ही के अंदर अगर करो तो तुम्हें करना पड़ेगा कि 85 से ग्रेटर है एंड अटेंडेंस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। और अगर नेस्टेड इफ में करोगे तो पहले इफ में ये चेक होगा, फिर दूसरे इफ में ये चेक होगा, देन प्रिंट की यू आर एलिजिबल, ठीक है। बोथ वेज ट्राई करना, और जो सा भी समझ में आया वो कल के लेक्चर में पूछ लेना। And then you have to submit the assignment, and then for any help and support, contact us here. And then thank you for joining today's session. If you have any questions, please ask. No, sir, no doubt. Thank you. Oh, thank you, Chirag. So we will again see each other in next session. Okay. Bye, sir. Bye.